Hello friends, this is Christian and welcome back to yet another session of history. So in this session we will explore Mauryan Empire. So let's start our today's session. Get ready to explore history. So the Mauryan Empire, the era from 323 to 184 BC. Mauryan dynasty. The founder of Mauryan dynasty was Chandragupta Maurya. He ruled from 323 to 298 BC. After defeating Dhanananda with the help of Chanakya. The father name of Chandragupta Maurya was Sarvarth Siddh Maurya. His mother name was Mura and his teacher name was Kautilya, Chanakya and Vishnugupta. All are same name of Chanakya. Kautilya and Chanakya was his personal name and Vishnugupta his professional name. And the time span of Kautilya was 350 to 275 BC. We got the information about Chandragupta Maurya from Junagadh inscription of Rudradaman, Arthashastra written by Kautilya and Indica written by Megasthenes or Mudra Rakshasa written by Vishakha Dutt. He defeated Seleucus Nicator in the year 305 BC, who ceded to Chandragupta Maurya the four provinces of Kabul, Kandhar, Takshila and Gandhar in return of 500 elephant. जो सेल्यूकस निकेटर था वो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया 305 बीसी में और उसने अपने चार जो प्रोविंसेस थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और चार प्रोविंसेस के नाम क्या क्या थे? काबुल, कांधार, तक्षशिला एंड गांधार। और उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया? 500 हाथी। In the year 298 BC, Chandragupta Maurya gave up his throne voluntarily to Bindusara, his son, when he was only 42 years old and became ascending under the Jain saint Bhadrabahu. तो 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन त्याग दिया अपनी इच्छा से और अपनी राजगद्दी किसे दे दी? अपने बेटे बिंदुसार को। When he was only 42 years old and अब क्या बन गया वो? ascetic, जैन संत भद्रबाहु के निगरानी में। Chandragupta Maurya migrated to south with Bhadrabahu and ending his days in Selkha, which means death of fasting according to Jain spiritual tradition at Shravan Belgola, कर्नाटका। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ साउथ में चले गए और अपने जीवन के आखिरी दिन जो फास्टिंग करते करते गुजारे, जिससे उनकी मृत्यु होगी और जैन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से उन्होंने अपना देह त्याग दिया। कहां पे? श्रावण बेलगोला, कर्नाटका में, जिसे क्या कहते हैं? सेल्खा, डेथ ऑफ फास्टिंग। और ये जो थी वो पवित्र मौत मानी जाती है जैन समाज में। चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ड सुदर्शन लेक इन गुजरात। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनाई? सुदर्शन लेक गुजरात में। मेगास्थनीज वाज दी ग्रीक एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। तो मेगास्थनीज क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर थे। Another name of Chandragupta Maurya was Sandrocotus and Androcotus. तो चंद्रगुप्त मौर्य के दो नाम और कौन कौन से थे? Sandrocotus and Androcotus. This one is very important for future exams. Kautilya's book Arthashastra, the name come from the root word artha, which means aim or lakshya, and shastra, which means treatise or book. अर्थशास्त्र is composed in brief statement from सूत्रास। 15 बुक हैं, 150 सेक्शंस हैं, 180 चैप्टर्स हैं एंड 6000 वर्सेस हैं अर्थशास्त्र में। द मेन थीम ऑफ अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट वन किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड सेकेंड वन वॉज civil and criminal laws, and third one was diplomacy of war.
कूटनीति, युद्ध की कूटनीति। द स्टेट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू होम प्रॉब्लम अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल एंड दी अदर प्रोविंसेस। जो जितने भी प्रोविंसेस जो जीते थे वो स्टेट में डिवाइड कर देते थे और जिसपे कंट्रोल किसका होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अफगान से लेकर यहां तक पूरा मौर्यन का साम्राज्य था ये पूरा। खाली ये कलिंगा इधर छोड़ के और ये साउथ का एरिया छोड़ के बाकी सब पे मौर्यन का कब्जा था उस टाइम पे। सो द नेक्स्ट रूलर वाज बिंदुसारा। He ruled from 298 to 273 BC. His mother name was Durdara and father name was Chandragupta Maurya. Chanakya was prime minister at the time of Bindusara. In Jain literature, he was known as Simha Sena, and in Greek literature, Bindusara known as Amitrochatus, which means अमित्रघात और slayer of enemy, दुश्मनों का वध करने वाला, दुश्मनों का वध करने वाला। इन बिंदुसारा कोर्ट ग्रीक एम्बेसडर डायमेकस इन हिज कोर्ट। जो डायमेकस थे वो क्या थे, ग्रीक एम्बेसडर थे बिंदुसारा के कोर्ट में। बिंदुसारा बिलीव्ड इन आजीविका सेक्ट विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मोखालीपुत्र गोशाला। Bindusara extended Mauryan Empire up to Mysore. So यहां तक बढ़ा दिया, पुणे तक, महाराष्ट्र में मैसूर तक। अफगान से लेकर ये पूरा ये कलिंगा छोड़ के यहाँ पे उड़ीसा में ये पूरा कैप्चर कर लिया था मौर्यन ने। और एट द टाइम ऑफ अशोका यहां तक कैप्चर कर लिया पूरा कलिंगा तक। सो द नेक्स्ट रूलर वाज अशोका। ही रूल्ड फ्रॉम 269 to 232 BC. His mother name was Dharma and father name was Bindusara. Ashoka was governor of Takshila and Ujjain during the reign of his father. तो अपने फादर के टाइम पे ये तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे। His first wife was Mahadevi and her son name was Mahendra and daughter was Sangamitra. Both were sent to Sri Lanka. इन्होंने अपने बेटे और बेटी को संगामित्रा और महेंद्रा को श्रीलंका भेज दिया। अदर वाइफ्स ऑफ अशोका। तो वाइफ ऑफ अशोका पहली थी महादेवी, दूसरी पद्मावती, तीसरी तिष्यारक्षा, चौथी असांधी मित्रा एंड फिफ्थ वन वाज करुवाकी। Ashoka's only son Tivara mentioned in the inscription who was born from Karuaki. और जो करुवाकी और तिवारा जो मेंशन है किसमें, क्वींस एडिक्ट इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक पिलर है क्वींस एडिक्ट, उसमें करुवाकी और तिवारा मेंशन्ड है, उसमें लिखे गए हैं इनके नाम। बैटल ऑफ कलिंगा 261 BC। बैटल ऑफ कलिंगा कब लड़ी गई, 261 BC में। इसके बाद से अशोका को अशोका द ग्रेट बोला जाने लगा, क्योंकि अशोका ने इसके बाद नॉन वायलेंस पाथ पे चलना स्टार्ट कर दिया और लोगों को भी उपदेश दिया अहिंसा का। ही फॉट दी कलिंगा वॉर इन 8th year ऑफ हिज रेन। जब इसे राज करते हुए 8 साल हो गए तब इसने कलिंगा वॉर लड़ी। और कलिंगा वॉर इंस्क्रिप्शन कहाँ मेंशन्ड है, 13th रॉक एडिक्ट कलिंगा, जो कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद, तो क्या किया कलिंगा ने, अपने आप को इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और कलिंगा काफी वेल्थी था और क्रूशियल ट्रेड पॉइंट भी था। और इसमें आर्टिस्ट लोग रहते थे
और इसकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी और मिलिट्री पावर भी बहुत अच्छा था इसका। और इसने अपने वेल्थ और मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए क्या किया, 3 रियासतों से ये व्यापार करता था और मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता था। वो 3 रियासतें कौन सी थी? मलंग, सिलोन और जावा। ये भी काफी वेल्थी नेशन थे। और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने काफी बार सोचा कि कलिंगा को जीत लें, पर ऐसा ना हो सका, वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर अशोका ने यही चीज सोची, क्योंकि कलिंगा जो था वो आसपास के जो कोस्टल लाइन थी, तटरेखा, उस पर कंट्रोल करता था, जो आगे चल के मौर्यन एम्पायर के लिए खतरा हो सकता था। और किसी बुक में कालिदास ने जो कलिंगा के किंग को क्या बोल रखा है? किंग ऑफ ओशियन। किंग ऑफ ओशियन भी बोल रखा है। राजा किसका? समुद्र का राजा। तो अशोका ने अपना मैसेंजर भेजा, दूत भेजा कलिंगा को कि अपने आप को सरेंडर कर दो और अपना साम्राज्य मौर्यन एम्पायर को दे दो। बट कलिंगा ने ऐसा नहीं किया और उसने युद्ध करना बेटर समझा। तो जो कलिंगा थी उसकी जो आर्मी पावर कितनी थी? इसके पास 60,000 सैनिक थे, सोल्जर्स, 1,000 घुड़सवार थे और 700 हाथी थे, हाथी वाली सेना। और जो मौर्यन साम्राज्य था उस पे 1 लाख से ज्यादा आर्मी थी, जिसमें 70,000 करीब पैदल सैनिक, 1,700 घुड़सवार और 10,000 से ज्यादा हाथी वाली सेना थी। इस चीज में मौर्यन ज्यादा था। और ये जो आंकड़ा है वो मेगास्थनीज ने दिया है किसी बुक में अपनी। तो जब कलिंगा ने झुकने से मना कर दिया तो युद्ध हुआ, बैटल ऑफ कलिंगा, जिसमें काफी लोग मारे गए। कम से कम 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख जो वहां के लोग थे वो मारे गए। टोटल मिला के कम से कम 3 लाख लोग मारे गए इसमें। तो इसमें अशोका की जीत हुई और उसने अनेक्स्ट कर लिया कलिंगा को। लेकिन जब बैटल ग्राउंड में जब अशोका थे तो उन्होंने देखा कि रोते हुए बच्चे, लहूलुहान सैनिक और रोती हुई औरतें, तो ये इनके दिल को काफी ठेस पहुंची और ये उदास हो गए काफी कि मैंने जीत कर भी क्या हासिल किया। ये रोते हुए बच्चे और ये लहूलुहान सैनिक। तो इसके बाद इससे काफी दुख पहुंचा। इसके बाद इसने बुद्ध धर्म अपना लिया और अब इसने लड़ाई करना छोड़ दिया। ये पहली और आखिरी लड़ाई थी अशोका की जिंदगी की। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन अशोका। Ashoka adopted Buddhism after winning Kalinga War. He was inspired by Nigrodh, a 7-year boy monk. Later he came in contact with Mogliput Tisha. तो ये किससे इंस्पायर्ड हुआ? निग्रोध, जो 7 साल का बच्चा था, मॉन्क था। लेटर ही केम इन कॉन्टेक्ट विथ मोगलीपुत तिशा। और इसने कलिंगा वॉर जीतने के बाद बुद्ध धर्म अपना लिया। मोगलीपुत तिशा वाज रिलीजियस टीचर ऑफ अशोका। अशोका के रिलीजियस टीचर कौन बन गए फिर? मोगलीपुत तिशा।
On 10th year of his reign, he visited बोध गया, बिहार। अब राज करने के 10वें साल में ये बोध गया गए एंड लेटर ही विजिटेड लुम्बिनी, नेपाल फॉर प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का विस्तार करने के लिए बोध गया और लुम्बिनी गए। अशोका स्पॉन्सर्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाटलिपुत्र इन द ईयर 251 बीसी। अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई कहां पे? पाटलिपुत्र में, इन द ईयर 251 बीसी, और जिसमें अभिधाम पिटक इस्टेब्लिश हुआ इस काउंसिल में। अशोकास धम्मास वाज ऑन एथिकल कोड एम टू बिल्ड अप एन एटीट्यूड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द पीपल। तो सामाजिक जो जिम्मेदारी है वो लोगों के बीच में बढ़ाने के लिए इसने धम्मा इस्टेब्लिश किया, जो एक एथिकल कोड थे। हिज ऑल सेक्ट्स ऑन सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। जो भी इसके सेक्ट्स है वो किस पे बिलीव करते थे? सेल्फ कंट्रोल पे, अपने ऊपर कंट्रोल और प्योरिटी ऑफ माइंड। ही स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ धम्मा महापात्रा टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। इसने इंस्टीट्यूट खुलाए कई धम्मा महापात्रा के नाम से, जो धम्मा के मैसेज को आगे पहुंचाए। हिज धम्मा वाज वे ऑफ लाइफ। इसके धम्मा किस पे आधारित थे? वे ऑफ लाइफ पे, जिंदगी जीने के रास्ते पे, एंड बेस्ड ऑन हाई डिग्री ऑफ सोशल एथिक्स एंड सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक और आर्थिक और नैतिक जिम्मेदारी पे। प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा। धम्मा के प्रिंसिपल क्या क्या थे? वन शुड ऑलवेज ओबे एंड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हर किसी को अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। वन शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर यंगर पीपल। हर किसी को अपने छोटों के साथ प्यार से रहना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। पीपल शुड लिव विथ पीस एंड हार्मनी। और जो लोग हैं उनको आपस में शांति से रहना चाहिए और भाईचारा बना के। एल्डर शुड डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग विथ चिल्ड्रन। बड़ों को छोटों के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। हर किसी को अपने काम में चैरिटेबल होना चाहिए, मतलब दान देने वाला होना चाहिए। और जो सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं और दास हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। देयर शुड बी म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट अमंग पीपल्स। लोगों के बीच में प्यार और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो लोगों को सब धर्म का सम्मान करना चाहिए और टॉलरेट रहना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड बिलीव इन कर्मा। हर किसी को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। अशोका's edict. He was the first Indian ruler who made edicts. पहले कहां बनाए जाते थे एडिक्ट्स? पर्शियन कल्चर में। लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन लाया? अशोका। उसने पहली बार एडिक्ट्स बनवाए। अशोका's edicts were decoded by British historian James Prinsep in the year 1837. अशोका ने जो एडिक्ट्स डिकोड किया, जेम्स प्रिंसेप ने, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। कब? 1837 ईस्वी में। 4 लैंग्वेज यूज्ड इन दिस एडिक्ट। 4 लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है? पहली यूज हुई है प्राकृत, दूसरी ग्रीक, तीसरी एरेमेटिक एंड फोर्थ वन इज ब्राह्मी। जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो यूज हुई है वो ब्राह्मी है। सोशल कंडीशंस इन अशोका's टाइम। तो इस टाइम पे लोग कैसे थे? फिलोसोफर थे, फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे, मैजिस्ट्रेट थे, काउंसलर थे, आर्टिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के अनुसार वो
किसान थे, सैनिक थे और जज थे, काउंसलर थे, आर्टिस्ट थे और फिलोसफर थे। उसने क्या नोटिस किया अशोका के टाइम पे कि वहां पे कोई दास प्रथा नहीं थी। अशोका बिल्ट श्रीनगर सिटी, अशोका ने क्या बनवाया? श्रीनगर सिटी। सम अदर रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो पहला रूलर आफ्टर अशोका वाज दशरथा, ही रूल्ड फ्रॉम 232 to 224 BC, and next one was Samprati, he ruled from 224 to 215 BC, and after that Samprati Shali-Shukha, he ruled from 215 to 202 BC, and Devavarman, he ruled from 202 to 195 BC, and Shata Dhanvan, he ruled from 195 to 187 BC, and the last ruler of Mauryan dynasty was Brihadartha, he ruled from 187 to 185 BC. So our Mauryan empire is completed. So we will wind up the session here. Hope you enjoyed this session. If you enjoyed this session, please like, subscribe and share, and press the bell icon for the latest